Hello student, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject PDS Python for Data Science, and in this subject series we are studying the chapter 1, which is the overview of the Python. Till now we have shown the basic programming with the Python, how you can program the string, how you can program the list and other data structures with the program. In previous session we particularly studied about the list, how you can create a list, how you can use the method in list, and while you are doing a programming at a big level at that time, how this data structures are gonna helpful. In today's session we are going to study about the remaining data structures like tuple and dictionary, and after that we have shown the operators. There are different operators are supporting in the Python, so we'll study about that and we'll also see the practical how we can implement this and how it is actually going. Okay, so first thing is about the tuple. So tuple is an immutable ordered sequence of the object. Duplicate values are allowed inside the list, and tuple will be represented by the round brackets कि आप round brackets के through आपका जो tuple का coding है वो perform करोगे, and उसमें immutable ordered sequence of the objects वहाँ पे represent होता है, and it also duplicates the values. अगर आपके list में कोई duplicating values है तो उसको भी वो support करता है. Tuple is similar to the list, but list is mutable variables जहाँ पे आप जो भी टास्क परफॉर्म करते हो दैट इज इन म्यूटेबल फॉर्म, व्हाइल इन टपल इट इज इन इनम्यूटेबल फॉर्म. सो टपल डेमो करके एक फाइल बनाया. ऑब्वियसली वी आर यूजिंग द .py फॉर्म. देन हमने एक वेरिएबल लिया जिसको नाम दिया माई टपल. उसमें हमने हमारे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करवाया. यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट्स का यूज किया है. देन उसको हमने प्रिंट करवाया. सिंपली हमारा जो वेरिएबल था जहाँ पे हमने हमारे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर किया है टपल में, उसको प्रिंट करवाया. देन हमने यहाँ पे दो और चीजें करवाई है. एक इंडेक्स वैल्यू पे इंडेक्स मेथड का यूज करके इंजीनियरिंग ऐड करवाया है, एंड एक हमने माई टपल काउंट मेथड यूज करके ऑफ कहाँ पे है वो काउंट करवाया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट्स हमने दिए हैं उसमें ऑफ कौन सी पोजीशन पे आ रहा है वो हमने काउंट करवाया है. एंड थर्ड थिंग वी हैव यूज्ड द my tuple -1. my tuple is your variable name and -1 इंडेक्स नंबर हमने दिया है. सो बाय डिफॉल्ट आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो उसको प्रिंट करेगा. सो लेट्स सी कि प्रैक्टिकली ये कैसे परफॉर्म होगा. ये सो आई एम यूजिंग PyCharm, एंड पाइथन में आपको एस आपके जो भी वेरिएबल्स है या नेम्स है उसको डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो. सो माई टपल इज इक्वल्स टू, ये राउंड ब्रैकेट्स के बीच में आएगा. यहाँ पे हम हमारे ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं. सो फर्स्ट इज सपोज Nancy, सेकंड ऑब्जेक्ट इज Amiraj, third object is Ahmedabad, फोर्थ ऑब्जेक्ट इज GT. ठीक है, मैंने ये क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसको माई टपल नेम दिया है और इसमें मैंने सारे अपने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए. अभी मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ. प्रिंट माई टपल. ठीक है, एंड उसके साथ साथ लेट्स रन दिस कोड. ओके, सो आपने जो टपल में दिया एज इट इज उसको उसने प्रिंट कर दिया. नाउ we are performing that remaining two की index and count method को यूज करके ऐसे आप परफॉर्म कर सकते हो. सो माई टपल डॉट इंडेक्स, और उस इंडेक्स पे सपोज मैं ऐड कर रही हूँ प्रोफेसर. ठीक है,
this is done, and second one is I'm going to count it. So again, your variable name dot count method, and उस पे सपोज मैं वैल्यू दे रही हूँ GTU, एंड उसके साथ साथ हम प्रिंट करवा रहे हैं लास्ट वाला जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा, उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं. Program is done. Let's see. Okay. There is some error. Okay, so there is some error. We have forgotten to declare the value in tuple. Right, so as you can see कि कौन से इंडेक्स नंबर पे वो वैल्यू है वो आउटपुट में दे रहा है, एंड GTU कितनी बार है वो काउंट करके दे रहा है. ठीक है, सो टपल इज आल्सो वर्क लाइक अ लिस्ट, but it is for immutable order sequence numbers. Then we have the dictionary. So dictionary is an unordered collection of the key value pairs. आपकी जो key value pairs होगी उस पे वो work करेगा. You can see the syntax over here. Key है, then values है, दोनों के जब pair में होती है उसके लिए dictionary का use होता है. एंड की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉलन का यूज किया जाता है. एंड जो पूरा पैर है बिटवीन द, अगर एक से ज्यादा आपने की वैल्यू पैर्स वहां पे ऐड कर रहे हो, कि एक की वैल्यू पैर ऑलरेडी आपने ऐड कर दिया है बट आपको दूसरा भी करना है, सो आप उसको सॉरी कॉमा के थ्रू डिफरेंशिएट करोगे. एंड माय डिक्शनरी के लिए आपको माय डिक्शनरी कीवर्ड का यूज करना है, एंड इट इज यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट्स. डिक्शनरी के खुद के भी मेथड्स है, we'll see that कि वो कैसे वर्क करेंगे. First let's see this basic program कि माय डिक्शनरी डेमो जो बना है वो कैसे वर्क कर रहा है. माय डिक्शनरी वेरिएबल नेम दिया और उसमें आप देख सकते हो कि दो की वैल्यू पेयर्स दी है. फर्स्ट की वैल्यू पेयर है, फर्स्ट की वैल्यू पेयर है, उसमें कॉलेज एंड उसका नाम दिया गया है. सेकंड की वैल्यू है, उसमें सिटी एंड उसका नाम है. थर्ड वन है टाइप है, उसमें इंजीनियरिंग दिया है. उसमें से हम कॉलेज एंड सिटी उन दोनों के की वैल्यू को पास करवा रहे हैं. मीन्स जो ये की होता है फर्स्ट की है उसको हम पास करवा रहे हैं, तो वो आउटपुट में आपको वैल्यू देगा. आपने जो की लिखा है उसका जो वैल्यू यहाँ पे पास किया है उसका आउटपुट आपको देगा. So let's check this out कि ये कैसे वर्क कर रहा है. Okay, so I have written the code. My dictionary is equals to, मैंने first की वैल्यू पैर दिया college colon, उसका नाम दिया अमीराज. सेकंड की वैल्यू पैर दिया सिटी, उसका नाम दिया राजकोट. थर्ड की वैल्यू दिया which is type and technology, and मैंने कॉलेज एंड सिटी को प्रिंट करवाया है, as well as I'm also gonna print my dictionary dot get type. Let's run this program. Okay, so as you can see over here, यहाँ पे आपको तीनों आउटपुट में मिल रहा है.
कॉलेज का नाम अमीराज, सिटी का नाम राजकोट एंड टाइप नेम इज टेक्नोलॉजी। आप इजीली अपना डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। एंड विद द डिक्शनरी, जैसे लिस्ट में मेथड्स अवेलेबल थे, डिक्शनरी में भी मेथड्स अवेलेबल है। लाइक की मेथड इज देयर, so if you are using key method, so key method आपका जो लिस्ट है, आपकी डिक्शनरी का जो लिस्ट है, उसमें जितने कीज होंगे उनको रिटर्न करेगा। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द डॉट कीज। सिमिलरली वैल्यू मेथड है, आपकी जितनी वैल्यूज होगी उन सभी डिक्शनरी वैल्यू में जितने वैल्यूज होंगे उनको रिटर्न करेगा। डॉट वैल्यूज लिखना है। एंड लास्ट वन इज आइटम्स, so item method will return the list of the tuples for each key value pair associated with the dictionary। आपने कितने आइटम्स वहां पे मेंशन किए हैं वो उसको डिफाइन कर रहा है। सो लेट्स रन दिस। तो फर्स्ट हम की देखेंगे। सो क्या करना है आपको, सिंपली हमारा डिक्शनरी बना हुआ है, हमें सिर्फ वहां पे पास ऑन करवाना है आपका वेरिएबल नेम डॉट जो मेथड था वो। सो प्रिंट माय डिक्शनरी dot keys, okay, and let's run this। so as you can see कि जितने डिक्शनरी कीज थी हमारी, यहाँ पे कॉलेज है, सिटी है एंड टाइप है, वो आपको यहाँ पे आउटपुट पे मिल गई। सिमिलर वे में, सॉरी, सिमिलर वे में यू कैन फाइंड द values and items। so simply you have to write down the print your variable name dot values, okay, and we are also printing the items। so sorry, print my dictionary dot items, okay, let's run this। so यहाँ पे वैल्यूज में देख सकते हो, जो हमने वैल्यू पास ऑन की थी वो वैल्यूज आ गई है। ऊपर यहाँ पे कीज जो हमने पास ऑन की थी वो प्रिंट करके आई है। एंड यहाँ पे हमने जो आइटम्स, मतलब कॉलेज उसके साथ अमीराज, सिटी उसके साथ राजकोट, टाइप उसके साथ टेक्नोलॉजी, यू कैन सी दिस ओवर हियर कि यहाँ पे बीच में कॉलन नहीं है। जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था जब डिक्शनरी बना रहे थे, तो हमने उसको कॉलन के थ्रू डिफाइन किया था, बट यहाँ पे वो एज आपको आइटम्स लिस्ट मिल रहा है, राइट। सो उसका आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। आफ्टर दैट वी हैव द सेट डेटा स्ट्रक्चर, जैसे टपल डेटा स्ट्रक्चर है, डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, आप उसका यूज कर सकते हो। सिमिलर वे में आप सेट का भी यूज कर सकते हो। सेट इज यूज फॉर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द यूनिक ऑब्जेक्ट्स, उसको आप कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। देयर इज अ वन थिंग कि आप जो भी, अगर कोई रिपीटेड वैल्यू अगर आप वहाँ पे सेट में पुट अप करते हो ना, सो वो इंडिविजुअल यूनिक वैल्यू, यूनिक एलिमेंट्स को ही प्रिंट करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है माई सेट, ठीक है। उसमें हमने एक सेट ऑफ वैल्यूज दे दिया 111225539 एंड उसको प्रिंट करवाया। सो जब उसका आउटपुट आएगा तब क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यूज थी, बट वो उसको एज ए यूनिक वैल्यू कंसिडर कर रहा है। तो वो एक ही वैल्यू लेगा, वो चीज को जैसे लिस्ट में जितना आप दे रहे थे उतना प्रिंट हो रहा था, वैसे यहाँ पे नहीं होगा। एंड सेट के भी इनबिल्ट मेथड्स है, सच एज ऐड है, क्लियर है, कॉपी है, पॉप है, रिमूव है। ये सारे मेथड्स यू कैन यूज विद द सेट। जैसे हमने प्रीवियसली अभी बाकी सारे मेथड्स भी, अभी हमने जैसे डिक्शनरी का मेथड देखा, प्रीवियस लेक्चर में हमने लिस्ट के मेथड्स देखे थे। सिमिलर वे में यू कैन यूज द सेट मेथड्स, and only difference between the set and list is that the set will only unique elements and list can have the duplicate elements। लिस्ट में आप अगर दो दो वैल्यूज दे रहे हो
तो वो उसको भी प्रिंट करता है, while set will print only the unique elements. After that we have the operators in Python. अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स है, आपने ये सी में भी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा. So you can also implement the different operators with Python, like arithmetic operators, assignment operators, comparison operator, logical operator, identifying operators, membership operator, and bitwise operator. So let's see, first is arithmetic operator. So they have given the operator signs and the description about that and the example of that. Like यहाँ पे दो वेरिएबल लिए a and b, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 3, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो, फ्लोर एंड एक्सपोनेंशियल. ये सारे कैसे आप इक्वेशन में फॉर्मेट कर सकते हो वो यहाँ पे लिखा है. एंड उसका आउटपुट ये जो दो वेरिएबल्स लिए उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे है. एंड इवन वी हैव आल्सो, आई आल्सो मेड द लैब प्रैक्टिकल सीरीज, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को मैंने प्रैक्टिकली विद पाइथन कैसे कर सकते हो वो पुट अप किया. यू कैन गो थ्रू दैट. सो अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप पाइथन के साथ परफॉर्म कर सकते हो. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर देयर. सो अगेन लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए वही दो वेरिएबल्स लिए है, सेम वैल्यू लिया है, a is 10, b is equals to 3, and तीन ऑपरेटर्स है लॉजिकल ऑपरेटर्स, and, or, and, not. So and is for return the true if both the statements are true. आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगे तो उसके बीच में एंड का यूज किया जाता है. इफ a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज लेस देन 5. सो यहाँ पे एंड का यूज किया है. दोनों कंडीशन जो हमने वेरिएबल्स दिए उसके अकॉर्डिंग सही है. आउटपुट क्या आएगा? ट्रू. और का यूज कब करेंगे? इट रिटर्न्स द ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. यहाँ पे जो आपने स्टेटमेंट दिया होगा उसमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगा एट दैट टाइम, वो आउटपुट में ट्रू देगा. सो a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 विच इज करेक्ट, एंड b इज ग्रेटर देन 5. b इज नॉट ग्रेटर देन 5 बट हमने यहाँ पे और का यूज किया है, ठीक है, और हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, सो वो ट्रू आउटपुट दे रहा है. एंड नॉट, negate the result, return the true if the result is false. Means not a is greater than 5. So उस टाइम पे वो false result दे रहा है. So logical operators भी आप with Python perform कर सकते हो. Then we have the identifying and member operators. So identifying operators में again दो variable लिए है और उनका set define किया है. A में 1 2, B में 1 2 and C is equals to A. ये c की वैल्यू a के बराबर है. दो ऑपरेटर्स है is and is not. is कब वर्क करेगा? रिटर्न द ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम. मींस जो हमने वेरिएबल्स दिए दोनों सेम होंगे. a is b, उसके ऑब्जेक्ट मींस ये, ठीक है, a b c. तो a एंड b दिया है, दोनों के वैल्यूज क्या है? a is b, so वो गलत आया. एंड a is c, क्योंकि c is equals to a हमने डिफाइन कर दिया है, so उसके ऑब्जेक्ट सेम है इसलिए यहाँ पे ट्रू आया है. एंड is not use, well return the true if both the variables are different object. a is not b, so उसको वो ट्रू प्रिंट करेगा. Then we have the member operator. तो वहां पे भी अगेन दो वेरिएबल लिए है a and b और उसकी वैल्यूज डिफाइन कर दी गई है. और in और not in, ये दो मेंबर ऑपरेटर्स है. in कब वर्क करेगा? it returns the true if a sequence with the specified value is present in the object. कि आपने जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई की है उसमें वो सीक्वेंस में होगा तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा. सो a इन b, सो उसका आउटपुट आ रहा है ट्रू. एंड नॉट इन, return the true if the sequence with the specified value is not presented in the object. So a is not in the b, so false. You can perform these operators with Python programming. and basic जो operators है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो भी आपने ऊपर देखे उनका पूरा प्रोग्रामिंग आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. एंड जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसका यूज करते हो तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि नंबर ऑफ एडिशन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. जब ह्यूज नंबर्स होता है एंड उसको आप पाइथन के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज दिस ऑपरेटर्स एज वेल. So in today's session we discuss about the tuple.
dictionary, and set data structure and the operators. If you guys have any doubt regarding this, you can put your question in below comment box. Thank you so much everyone.